چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات، آپ سب کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے ہم لوگ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اتحادی جماعت کے ساتھی پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور سب ساتھی ہم لوگوں نے ایک علامتی مارچ کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک اور واپس۔ آج کی پریس کانفرنس اور یہ احتجاج کا مقصد سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، ہمارے جتنے اسیران ہیں، خواتین ہیں، ہمارے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ہمارے جتنے کے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں، ان ساروں کے لیے ان کے خلاف جو بوگس کیسز لگے ہوئے ہیں اس کی ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ایک گھٹیا کیس جو ان پہ لگایا ہوا تھا اس پہ بری کر دیا گیا اور بشرا بی بی کا روزگار بھی جاری ہو گیا تھا۔ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور میں خود ہم لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے 3.5 گھنٹے کھڑے رہے۔ نیب کی ٹیم نے آ کے جھوٹے کیسز میں ان کو پھر گرفتار کیا، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات، خواتین و حضرات، ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ، ہم لوگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی کیس ہو وہ نہ سنے۔ وہ اس میں ایک پارٹیزن پارٹی ہے، انہوں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے۔ ہم لوگ ان کا بینچ پہ شامل ہونا ہماری کیسز کے سننے کے لیے ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ نمبر 3، جو آپ کا ایڈ ہاک ججز کا سلسلہ ہے، ایڈ ہاک ججز یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ 56,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں۔ 3 یا 2 یا 4 ایڈ ہاک ججز کو لگانے سے یہ 56,000 کیسز ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی روٹ کاز میں جائیں اور عدلیہ کی ریفارمیشن ہونی چاہیے کہ سستا اور صاف انصاف لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے۔ 56,000 کیس کا سپریم کورٹ میں ہونا کسی قسم کی سوچ سے بالاتر ہے، اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہم خیال جج اپنے ساتھ لگائیں، جس کو پاکستان کی وکلاء برادری اور بالخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کا باپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بین کر سکتا۔ عمران خان، ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں، 3 کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہے، ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں، ہم لوگوں نے پاکستان کی ماں دھرتی کے لیے ہمارا آخری قطرہ خون کا ہم لوگوں کا میسر ہے اور ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں اپنے مادر وطن کی دفاع کے لیے۔ کوئی ہماری اس پیٹریٹزم پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک اور اہم بات کہ اس وقت جو ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، ان کو انٹر سروسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس، انٹیلیجنس بیورو، FIU اور اسپیشل برانچ کے لوگ اور اس کے ساتھ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے لوگ جھوٹی FIRوں میں اٹھا رہے ہیں، ان کو دوسری جگہوں میں رکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ MNA فیاض صاحب موجود ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بیٹے کی تشدد کی آوازیں ان کی والدہ کو سنائی گئیں، ان کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میں فیاض صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
अपना एफिडेविट पेश किया बैरिस्टर गौर साहब को, और वो सच्चे सिपाही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे। यहाँ पे मौज़म जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहाँ से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और यहाँ पे स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को मेरी खुद बात हुई थी, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मैं हर एक इंसिडेंट से, वाक़े से आगाह करता रहा हूँ। आइन और कानून में ये है कि किसी मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट या करना हो तो स्पीकर के ऑफिस को ज़रूर इत्तला देनी पड़ती है और इजाज़त लेनी पड़ती है। वो नहीं दी गई और वो इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत है, जंगल का कानून है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और हमारी इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, आपकी MI, IB, FIU, आपकी स्पेशल ब्रांच, ये सब की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स के पीछे उनके जो डाले हैं, वीगो डाले, वो फिर रहे हैं। और ना कि वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपके दहशतगर्दों का ताक़ुब करना है, वो उससे गाफिल है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे तवज्जो दें और दहशतगर्दी का सदेबाप करें। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि हमने प्रिविलेज मोशन दायर कर दिया है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्पीकर के ऑफिस में, जिसमें शिबली फराज साहब, शंदाना गुलजार साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, जुनेद अकबर खान साहब और मैं, हमें अडयाला जेल में 4 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने से रोका गया था। बाहर हमें चौकी से निकाला गया था। वहाँ पे पुलिस एहलकारों के, ISI के लोगों के, और उनको हमने समन किए बशमूल सेक्टर कमांडर रावलपिंडी इस्लामाबाद ISI कि वो आके बताएं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और जेल नॉर्मल जेल की तरह सिविलियंस के कंट्रोल और पुलिस के कंट्रोल में क्यों नहीं है, जेल अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में क्यों नहीं है, और यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग क्यों यहाँ पे अपना मनमानी कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जो कि हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, हमारा इस्लामाबाद का जलसा भी होगा, हम लोग इंशाल्लाह स्वाबी के मुकाम पे भी करेंगे और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में। हम लोग आखिरी दम तक हम लोग काम करते रहेंगे। और आखिर में मैं एक बार फिर जो हमारे साथी एंटी करप्शन केसेस में हमारे साथियों के खिलाफ बोगस FIR आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मरियम नवाज जो कि फॉर्म 47 की वज़ीर आला है और शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कानूनी चाराजोई और कानूनी अमल पे भी पूरा हम लोग पुश करेंगे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हदायत के परखचे उड़ाए जा रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद शिबली फराज साहब। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। उसमें हमारे मने साहिबान ने शिरकत की, उसमें हमारे सेनेटर साहिबान और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली साहब ने भी शिरकत की। उसमें हमारे इत्तेहादी जनामा अनामा नासिर साहब MWM के चेयरमैन शरीक हुए। उसमें सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब भी शरीक हुए। आज हमने मुतफ़िका तौर पर इम्पॉर्टेंट फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुँह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक़ में एक फ़ैसला दिया। हम काजी फाइज़ा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अगर आप माइनॉरिटी में भी है
تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اس فیصلے میں منع عمل کروانا، اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی، قانونی اور ایز اے چیف جسٹس ذمہ داری ہے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو. 4 ججز کو ایڈہاک ایک ساتھ لانا، وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا، وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموسٹ 1 مہینہ ہے. چھٹیاں شروع ہو گئی، سپٹمبر 15 تک چھٹیاں ہیں. 1 مہینے تک آپ نے ان 4 ججز کو لانا، اور وہ بھی 3 سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے. ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلاح ہوگی، اس سے اور ہی بد اعتمادی بڑھے گی آزاد عدلیہ پہ. یہ ایڈہاکزم آزاد عدلیہ کے لیے مضر ہے. مہربانی کرے اس سے اجتناب کرے. آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی پراز صاحب کی طرف سے، اور آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم بھیج رہے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں. ججز اس انیشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے مہربانی نہ بنائے. یہ وقت ایسے ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وکلاء تنظیموں کے، وکیلوں کے، ان پولیٹیکل پارٹی نے کہ جنہوں نے ایڈہاکزم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے. پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے. اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی تھی، ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی. اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں. جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، 37 MNA نے اپنے ایفیڈیوٹس فائل کیے ہیں، اس کی کنفرمیشن ہم بھیج رہے. باقی ہمارے 3 MNA صاحبان ہیں، وہ دبئی میں تھے اور عمرہ پہ ہیں، ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی کل سبمٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بھیجیں گے. ہم الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے. سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے، آپ نے فوراً ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس رپورٹ فوراً سپریم کورٹ میں فائل کرے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس رپورٹ بھی جلد فائل ہوگی. شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ضروری، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے، بیانات دیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، اور انہوں نے مائنڈ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب. میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں، ان کو پی ٹی آئی کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے. اور آخری ڈیمانڈ میری طرف سے، پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے، چیف الیکشن کمشنر سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمشنرز فیل فور ریزائن کریں، ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر باتیں میرے ساتھیوں نے کر لی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے، جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ تلملا اٹھا ہے، یہ بوکھلا گیا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں جس سے کہ اس پورا جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی، عوام کا جو ایک مینڈیٹ تھا، وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے. جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو، یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے، جو کہ حکمران ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی. جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے
आइन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी होगी, ये मजीद जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीज़ों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात ना सुने, अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल को आगे करें, उजागर करें। माजरत, इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख चुके हैं, वो चीज़ें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायीद करता हूं अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महज़ब उसमें लाना है, महज़ब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आइन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते। और ये जो बात की है वो उस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, जिसके के वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड लें, बीच बीच में ना खेलें। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मन घड़त सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश के नाखुन लें, आइन पे और कानून की अमलदारी पे काम करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये अब एक सेकंड, ये सरताज गुल बात करेंगी, सिर्फ एक सेकंड। बहुत बहुत गर्मी में दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा से धूप और गर्मी में हमारे लिए खड़े और हमारी बात को आप पहुँचा रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे दो बात है, जिससे मैं चाहती हूँ कि अलामा नासिर साहब भी आपसे बात करें, साहिबजादा साहब भी आपसे बात करें। PTI को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अज़ादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अज़ादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNA से PS के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरी के साथ बोला गया था। लिहाजा
ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है, पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और इमरान खान इंशाल्लाह रहेगा। बेहतर ये कि आप हमसे जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफी मांग ले, इंशाल्लाह अफाका होगा। ये स्पीकर असद कैसर साहब अलायंस के बारे में, उसके बारे में जरूरी आपसे बात। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखें, जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है और मुल्क में जो इन्होंने अनारकी फैलाई हुई है और ये जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुल्क को आइन जो है ना सरजमीन बे आइन बना दिया है और कोई ये नहीं महसूस करता कि इस मुल्क पे कोई कानून या आइन है। ये जो कर रहे हैं ये बंदूक के ज़ोर पर कर रहे हैं, ये बदमाशी के ज़ोर पर कर रहे हैं, इसके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। हम सिर्फ कानूनी जवाज़ को सामने रखते हुए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूँ कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी ना फैले। अभी इनको बताया होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। अलायंस के हवाले से हमारी जो है ना 1-2 दिन में आपको इंशाअल्लाह बड़ी खबरें मिलेंगी। GDA से भी राबिता है, जमीयत उलमा इस्लाम से भी राबिता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से राबिता है। इस जुलाई में हम इस अलायंस को बड़ा करेंगे और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। उसने जो है ना अपने लिए एक ऐसा तरीका बनाया कि वो समझते हैं कि कोई तरीका मुझे जो है ना राय फरार मिले। राय फरार तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफ़ी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट था मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है, तो आपकी कुछ न कुछ सियासत बच जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, इन्होंने जो बिजली के हाल किए, जो बिजली के बिल लोगों के पास जाएंगे ना, ये आम गरीब आदमी की बस की बात नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकेंगे। जितने इन्होंने टैक्स लगाए हैं, ये टैक्स किसी की बस की बात नहीं है कि ये टैक्स जो है ना ये पे कर सकेंगे। ये जो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, हम आवाम से ये यकीन का चाहते हैं कि आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम ठीक है, इमरान खान इस वक्त जेल में है, वो आपके लिए है, इस मुल्क की सॉवरेनिटी और इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए है। इमरान खान अगर कुर्बानी से रहा है तो एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए, हकीकी पाकिस्तान के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए से रहा है। अवाम के साथ हम खड़े हैं। और मैं आखिर में एक और बात करता हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो एक सिचुएशन बन रही है, वहाँ की हुकूक नहीं दी जा रहे हैं, वहाँ के फंड नहीं दी जा रहे हैं, वहाँ जिस तरह ये रवैया रखे हुए हैं, यकीन जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। हम इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे पास अलायंस में लोग हैं, हम 1-2 दिन में जो है ना अपने अलायंस की मीटिंग भी कर रहे हैं और उस पर भी हम लाए अमल देंगे जी। थैंक यू।